Recording in Guys, we will start in 2 minutes time. I think more students should join. recording.
All right. Good morning, guys. I think that's it. Then not many will join. Let us start today's class. So we were in the mid of the sheet. Last class was very important class. We learned how to solve the questions, different types of question. That was second sheet on different types of question. So I hope you remember what all things we learned in our last class. Kindly unmute and speak. Without wasting time, tell me क्या क्या किया था हमने अपनी क्लास में लास्ट टाइम. Nobody remembers? Sir, we have studied tone of the passages, how to find tone. Okay. और क्या किया था? टोन के अलावा भी हमने कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस देखे थे. पैसेज कहाँ से उठाया होगा? ब्लॉग से उठाया है, न्यूज़पेपर से उठाया, याद है? Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए. मैं फिर से बोलूंगा, रिवाइज ऑल द रिकॉर्डिंग्स दैट यू गेट गाइस. यू हैव ऑल द थिंग्स इन विथ यू. बस एक बार रिवाइज करना है. तो चलो ठीक है, आज हम लोग फिर इस शीट के जो पैसेजेस है उसको सॉल्व करते हैं. आई थिंक आउट ऑफ द 10 क्वेश्चंस ऑन टोन्स वी ऑलरेडी हैव डन 8 क्वेश्चंस. रिमेनिंग 2 अच्छा चलो कर ही लेते हैं, खत्म फटाफट कर लेते हैं. आई थिंक हम यहाँ पर थे, है ना? ये वाला क्वेश्चन करना था कि हो गया था 19th वाला? बताओ, ये करना था? ठीक है, तो 19th और 20 जल्दी से कर लो, फिर अपन आज पैसेज सॉल्व करते हैं फिर. ठीक है, तो जल्दी से कर लो इसे 2-3 मिनट में दोनों. ऑल राइट, फटाफट. आशुतोष एंड अक्षता, दो लोगों के आंसर आ चुके हैं. वेरी गुड, बोथ द आंसर्स आर राइट. आशुतोष अग्रवाल का आया था, अभी आशुतोष का आ रहा है. ओके, तो आशुतोष अग्रवाल और अक्षता के आंसर सही है. एक दो आंसर और आ जाए तो आगे बढ़ेंगे. ओके, ठीक. तो पहले देखते हैं क्या कर रहा है ये. We write these words now, many miles distant from the spot at which year after year we met on that day, a merry and joyous circle. बोल रहा है, मैं ये वर्ड्स को लिख रहा हूं उस जगह से बहुत दूर बैठकर जहां पर हम हर साल मिला करते थे. Many of the hearts that throbbed so gaily then have ceased to beat.
बहुत सारे हार्ट जो उस समय जो जिंदा थे अब वो मर चुके हैं। Many of the looks that shone so brightly then have ceased to glow. बहुत सारे चेहरे जो उस समय ब्राइट दिखा करते थे अब उनमें ग्लो खत्म हो गया है। The hands we grasped have grown old. हम जो हाथ पकड़ते थे वो अब कोल्ड हो गए। The eyes we sought have hid their luster in the grave. जिन आंखों को हम देखने की कोशिश करते थे अब वो ग्रेव में चले गए। कुल मिलाकर के ये पुराने दिनों को याद कर रहा है, और याद करके दुखी है कि खुश है? यार दुखी है। इसको एप्रिसिएशन कैसे हम बोल सकते हैं? He is sad about it. Answer is wistful. Wistful is bit complaining, nostalgic होकर के किसी चीज को complain करके याद करना, that is wistful. Complaining in nature. वो पुरानी चीजों को याद कर रहा है और उसके बारे में थोड़ा सा नेगेटिव सेंस उसका है। ठीक है, चलो ये फटाफट जल्दी। Okay, yes, Ashutosh, Akshata, you both are right. Sacheta, sahi hai answer. Yes, Sanchit, right. So all of you have given me right answers so far. Yes, Prakhar, you are also right. Excuse me. Yes. So this tone is narrative. This tone is narrative. How come narrative? Because if you see, ये एक स्टोरी या सीन को डिस्क्राइब कर रहा है। ये एक सीन को डिस्क्राइब कर रहा है। नवंबर आया with raging southwest winds. Building had to stop because it was now too wet to mix the cement. बिल्डिंग का वर्क रोकना पड़ा क्योंकि काफी वेट हो गया था मौसम। Finally there came a night when the gale was so violent that the farm buildings rocked on their foundation and several tiles were blown off the roof of the barn. मतलब बिल्डिंग गिरने लगी। The hens woke up with terror. In the morning, animals came out of their stalls to find that. तो ये एक स्टोरी का नरेशन है। That's why the tone is narrative in nature. Caustic का मतलब होता है very sharp, चुभने वाली बात बोलना, that is caustic. Sanguine का मतलब होता है cheerful. Objective का मतलब होता है without any bias. So the tone is narrative here. All right. Okay. So we have seen the how to solve the tone questions in the last class and this class. We have seen that. So just to once again reiterate, हमके by and large हमें क्या करना है? हम पहले तो ये देखें कि whatever is written, is it positive in nature, negative in nature, और neutral? उतना हम समझने की कोशिश करें. And after that, we can check the options and then eliminate the option which doesn't fit. Okay.
right? So let us move to, we have spent enough time on the tones. Now let us move to the passage. So this is one good passage, not very difficult, but has wide variety of questions. I hope all of you have sheet with you, because I will not be moving the screen. You have sheet with you, everyone? ग्रुप में तो शेयर किया था लास्ट क्लास में, जल्दी से बताओ, अपने ग्रुप्स में चेक कर लो, नहीं तो शीट है, ठीक है ना? आप अपनी शीट को फॉलो करके पैसेज खत्म करो। सिंपल पैसेज है, क्वेश्चंस बड़े वाइड वैरायटी के हैं, तो वी विल लर्न अ लॉट हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। ओके, सो मे बी 9:50 52 तक के यू कंप्लीट इट, देन वी विल डिस्कस। प्रखर शीट अभी ग्रुप में डाल दिए, एक बार देख लो, फिर से मैं डाल दिए सुमित सर ने, अब मिल गई होगी आई हो। हाँ ठीक।
do let me know once you have done the reading and also attempting the question, है ना, दोनों दोनों हो जाए तब बता. Okay guys, done. सिर्फ दो लोगों का है, आशुतोष एंड ट्विंकल, बाकी लोग बताएं. All right. So how is the passage? I don't think passage is very difficult, but the type of questions जो है वो काफी अच्छे variety के हैं, तो that's why ये एक अच्छा passage है, and you can expect such kind of passages in CAT also, which are not very difficult, but you will have wide variety of questions in them. Okay, so देखते हैं. अच्छा मुझे बताओ, समझाना है क्या passage? If you want me to explain the passage, please tell. Otherwise, we can go to the question. प्लीज आप लोग आंसर दें मेरे को. यस नो, क्या पैसेज समझाना है या क्वेश्चन में चले? नहीं समझाना है ना, ठीक है, राइट, ओके. तो सबसे पहला क्वेश्चन अगेन इज ऑन टोन. द एटीट्यूड ऑफ ऑथर टुवर्ड्स द लैंडलॉर्ड्स इन द पैसेज इज. अच्छा, तो पहले तो हम यही देखते हैं कि ऑथर लैंडलॉर्ड के प्रति किस तरीके का एटीट्यूड रखे हुए, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या नेगेटिव है. पहले तो ये बताओ, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या नेगेटिव है? ऑथर लैंडलॉर्ड्स के प्रति किस तरीके का एटीट्यूड रखे हुए है, मतलब ऑथर की टोन से उसको गेस करना पड़ेगा, राइट, कि किस तरीके का एटीट्यूड है लैंडलॉर्ड्स को लेकर के. पॉजिटिव, अच्छा बोल रही है, बुरा बोल रही है, कि न्यूट्रल है? नहीं समझ में आया क्या पैसेज? सिर्फ एक दो लोगों का जवाब आया है, नेगेटिव है. ठीक है, ओके, नेगेटिव है, राइट. अच्छा, नेगेटिव है तो ऐसे ऑप्शंस को तो मैं हटा देता हूं जो न्यूट्रल टाइप के लग रहे हैं. न्यूट्रल क्या हुआ? एम्बिगियस का मतलब क्या होता है? एम्बिगियस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एम्बिगियस? सिंपल वर्ड है यार, इसका मीनिंग तो पता होना चाहिए.
एम्बिगुअस मतलब आशुतोष गुड, मिक्स्ड, डाउटफुल, जिसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, अनक्लियर। तो क्या ये आंसर हो सकता है क्या कि ऑथर का एटीट्यूड क्लियर नहीं है? आप लोग तो बोल रहे हो नेगेटिव है, तो एम्बिगुअस कभी भी ना न्यूट्रल टोन, न्यूट्रल कैटेगरी में फॉल करेगा, ठीक है। एम्बिगुअस मतलब मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या बोलना चाह रहे, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। सरकास्टिक डेफिनेटली नेगेटिव वर्ड हो सकता है आंसर। नॉन शैलन, नॉन शैलन का मतलब क्या होता है? नॉन शैलन इज ऑल्सो न्यूट्रल वर्ड। नॉन शैलन का मतलब होता है फर्क नहीं पड़ता है, इनडिफरेंट, इनडिफरेंट, तो ये भी नहीं हो सकता। नॉन शैलेंट का मतलब है फर्क नहीं पड़ता, जैसा है वैसा ही, कोई कोई प्रभाव नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, सो दैट इज अगेन अ न्यूट्रल वर्ड, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। फास्टिडियस, फास्टिडियस का मतलब होता है अ पर्सन हु इज टू मच बॉदर्ड अबाउट डिटेल्स, जो बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाएगा किसी चीजों की, ठीक है, जो जिसको जिस डिटेल्स में जाएगा, बोलने का मतलब ये है जो बोलेगा कि अगर प्रोसेस ऐसा है तो काम ऐसा ही होना चाहिए, किसी और अलग तरीके से काम नहीं होना चाहिए। ये तो ऑथर का एटीट्यूड लैंडलॉर्ड्स के प्रति ऐसा कुछ है क्या कि बहुत ही ज्यादा मतलब पर्टिकुलर है कि लैंडलॉर्ड को ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए? ऑथर का एटीट्यूड लैंडलॉर्ड के प्रति ऐसा है क्या? सरकास्टिक का मतलब क्या होता है? सरकास्टिक का मतलब ये होता है कि इनडायरेक्टली कुछ चुभने वाली बात करना, इनडायरेक्ट वे में कुछ टॉन्ट मारना, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? सरकास्टिक, बी। वाई? शुरुआती वैसे की है, भद्रलोक। व्हाट इज मीनिंग ऑफ भद्रलोक? ऑल्दो इट्स अ बंगाली वर्ड, बट वो तो अब हिंदी लैंग्वेज में भी यूज होता है, भद्रलोक। लोक मतलब पीपल, भद्र मतलब, अच्छा भद्र नहीं पता है आपको? ये जरूर पता होगा, अभद्र टिप्पणियां की, न्यूज़पेपर में आता है ना, अभद्र टिप्पणियां की। अभद्र मतलब क्या होता है? किसी एक का तो बता दो यार। नहीं नहीं यार, वो तो पीपल होता है। भद्र और अभद्र क्या होता है यार? व्हाट इज अभद्र भाषा? तुम लोग हिंदी न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते? तुम लोग सिर्फ ओटीटी में देखो और गाली गलौज सीखो, बस वैसा ही है। हाँ, अभद्र मतलब होता है वल्गर, राइट? अभद्र मतलब वल्गर है, तो भद्र मतलब क्या होगा? सिंपल है, इसका ऑपोजिट, राइट? तो वो बोल रहा है लैंडलॉर्ड्स को उसने भद्र लोग बोला, और फिर बताया उसने कि कैसे भद्र लोग है। भद्र मतलब सोफिस्टिकेटेड, दे कॉल देमसेल्फ सोफिस्टिकेटेड। द भद्र लोग इज अ प्रिविलेज्ड सोशल क्लास। अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता है तो यहां से गेस कर सकते हो ना, दैट मीन्स कि हम अभी भी वहीं पर, वहीं के वहीं है इंग्लिश में। द भद्र लोग इज अ प्रिविलेज्ड सोशल क्लास दैट emerged in, it's a privileged social class. लैंडलॉर्ड गोज बैक टू अर्लियर टाइम्स। भद्रलोक और लैंडलॉर्ड को कंपेयर किया है। When they come together, which is often the effect is deadly, मतलब बोल रहा है भद्रलोक एक प्रिविलेज सोशल क्लास है जो बंगाल में एमर्ज हुई ब्रिटिश रूल के समय। लैंडलॉर्ड उससे भी पहले के लोग हैं, और जब भद्रलोक और लैंडलॉर्ड मिल जाते हैं, मतलब लैंडलॉर्ड जब वो सोफिस्टिकेटेड क्लास के लोग होते हैं, तो अफेक्ट डेडली होता है, खासकर विमेन में, विमेन के ऊपर। फिर उसने बताया कि ये लोग जो अपने आप को भद्रलोक कह रहे हैं, प्रिविलेज क्लास है, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो उस तरीके की बात कर बताया है उसने। दे आर बायस्ड टुवर्ड्स फीमेल इन एवरी सेंस। और एंड में जाकर के फिर से उसने उसी रिमार्क पे कंक्लूड किया है कि इससे अच्छा तो मेरा ब्रोकर था जो कम से कम इस तरीके के सवाल पूछा, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को वो भद्रलोक नहीं कहता। लास्ट में उसने ये बात की है, ठीक है। सो आंसर इज सरकास्टिक। तो आप लोगों ने बोला आपको पैसे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे लगा समझ में आ गया होगा, तो क्या क्या समझ में आया? इस लाइन में व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ लैंडलॉर्ड टुवर्ड्स द ऑथर? ओनली फोकस ऑन दिस लाइन।
Yes, answer. चलो भाई देखो, जब तुम किसी को बोलोगे ऐसे या तुम्हें कोई ऐसा बोलता है, जैसा बताया द लैंडलॉर्ड, मान लो मैं लैंडलॉर्ड हूं और तुम एक समय के लिए मान लो कि मैं तुम्हें इस तरीके का जेस्चर दे रहा हूं, मैंने अपने हाथ का ग्रैंड स्वीप किया और बोला आके मेरे सामने मैट पे बैठो नीचे, मैंने आई गिव द ग्रैंड स्वीप ऑफ माय हैंड एंड शो यू वेयर टू सिट, which of the word describes my attitude towards the author? चलो, तो लैंडलॉर्ड का एटीट्यूड क्या है वैसे भी इस विमेन के प्रति, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल? पहले तो ये देखो, बताओ लैंडलॉर्ड का एटीट्यूड क्या है ऑथर के प्रति ओवरऑल पैसेज में? नेगेटिव, राइट? नेगेटिव है। अच्छा, और अगर आपको कोई ऐसे हाथ दिखा के बोल रहा है यहां आकर के बैठ, राइट, ग्रैंड स्वीप ऑफ हैंड, तो क्या बोलेंगे हम? नेगेटिव। रिवरेंशियल का मतलब होता है रिस्पेक्ट, रिवरेंशियल का मतलब होता है रिस्पेक्ट, पूजा करना, तो क्या ये आंसर होगा जो तुम लोग मुझे बता रहे हो? दिस इज कंप्लीटली ऑपोजिट। रेवरेंशियल इज रिस्पेक्टिंग समवन ह्यूजली। एक होता है माइल्ड जेस्चर देके किसी को बैठने बोलना, दैट इज रिस्पेक्ट। एक है ग्रैंड स्वीप ऑफ हैंड से बोलना कि आकर के मेरे सामने बैठो, दैट इज एरोगेंस। सो दिस इज नॉट रिवरेंशियल। ठीक। कॉन्टेम्पलेटिव मीन्स थॉटफुल, कॉन्टेम्पलेट करना मतलब सोचना, थॉटफुल। Sardonic means a feeling of arrogance, feeling of arrogance which says that I am superior than you. Arrogance, superiority. Answer is option number 3. Denigrating मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, डिमीन करना। ये सब वर्ड्स की मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं वैसे पिछली क्लास में। Sardonic is the answer. Next, the passage is most likely an extract from. Remember, look at the language of the passage and then say कि क्या होगा, कहां से उठाया होगा। मैं काम करता हूं, आप सबके घर में न्यूज़पेपर है आज? डू यू हैव न्यूज़पेपर टुडे? एक काम करो, लेकर के आ जाओ। लेट अस सी कि हम इतनी बेवकूफी वाले आंसर्स कैसे मार्क करते हैं। एक बार देख लेते हैं न्यूज़पेपर एडिटोरियल में किस तरीके के आर्टिकल्स आते हैं। न्यूज़पेपर रिपोर्ट यानी कोई इवेंट, घटना जो घटी है वो होता है, जैसे कल एक रॉबरी हुई उसके बारे में कुछ बताया है, या क्रिकेट मैच हुआ उसके बारे में बताया है। सेल्फ हेल्प कॉलम मतलब थोड़े मोटिवेशनल या अपने आप को सुधार करने के कॉलम। न्यूज़पेपर फीचर मतलब
न्यूज़पेपर में जो एडिशनल कॉपीज आती हैं, कभी जैसे थर्सडे को कुछ कॉपी आ गई एडिशनल, कभी करियर्स के ऊपर आता है, कभी विमेन सेंट्रिक आता है, वो होता है। तो चलो आप एक बार आज न्यूज़पेपर लेके आओ और देखो जो लोग रिपोर्ट बोल रहे हैं, कौन सी न्यूज़पेपर रिपोर्ट में एक रिपोर्टर ये कहानी देता है यार। प्लीज अप्लाई सम डिग्री ऑफ कॉमन सेंस, find out in the newspaper and check and tell me which of these four can be the answer. Ji, are you checking in the newspaper or waiting for me to tell the answer? All right, so answer is option number 4. न्यूज़पेपर एडिटोरियल में बेटा टॉपिक्स की एनालिसिस होती है, कुछ इंपॉर्टेंट जो इंडिया में या वर्ल्ड में कुछ टॉपिक्स चल रहे होंगे उसकी डीप एनालिसिस होगी। न्यूज़पेपर रिपोर्ट जैसे मैंने बताया, कोई इंसिडेंट जो हो रहा है, न्यूज है, जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट में न्यूज की रिपोर्ट आती है। न्यूज़पेपर सेल्फ हेल्प कॉलम इज अ मोटिवेशनल कॉलम, या फिर अपने आप को सुधारे कैसे किसी भी फील्ड में, उसके बारे में होगा। न्यूज़पेपर फीचर इज additional copy which is specifically on a particular subject. That subject can be women, that subject can be youth, that subject can be education. So this is a newspaper. This looks like a newspaper feature because these cannot be the answer. Okay, newspaper में generally इस तरीके की चीजें आपको नहीं मिलेंगी, that's why newspaper feature. Okay. Next, if there were a paragraph after the last line of the passage, which of the following would be its main focus? ध्यान रखेंगे, लास्ट लाइन के आगे पैसेज को बढ़ाना है, तो इसके पहले क्या बोला था वो ध्यान रख के ही आगे बढ़िएगा, कहानी को आगे बढ़ाना है। तो लास्ट लाइन में उसने जिस तरीके की बात की थी उसको प्लस पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। All right. So right answer is option number 2, the author's journey as a tenant in Calcutta. चलो दो चीजें देखना है, एक लास्ट लाइन में क्या बात हुई थी, वो लास्ट के कुछ लाइंस में क्या बात हुई थी, चलो यहां से पढ़ते हैं अपन। But then brokers didn't claim to be Bhadraloks, and when I told my first broker there would be friends sometime party, she said invite me. My last landlord in Mumbai though has accused me of running away with fluorescent light and its holder, but I am sure that is not of my gender. तो अभी तक के वो बोल रही थी कि ब्रोकर्स के बारे में बात किया, बोला ब्रोकर्स एटलीस्ट अपने आप को भद्र लोग तो क्लेम नहीं करते, इनफैक्ट उनका बिहेवियर लैंडलॉर्ड से बेटर होता है। मेरे लास्ट लैंडलॉर्ड ने मुझे अक्यूज किया था चोरी के लिए, और मैं अपने आप को कलकत्ता में ऑल द बेस्ट विश कर रही हूँ आफ्टर द एक्सपीरियंस विद वन ऑफ द पर्सन। जो लैंडलॉर्ड बना क्या उसका, नहीं उसने घर कहाँ लिया, वो तो चले गई उठ करके, तो उसने बातचीत ही बीच में बंद कर दी, तो लैंडलॉर्ड तो वो हुआ ही नहीं। ओके,
तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक ये कि लास्ट लाइन में क्या बात किया था, लास्ट लाइन में उसने कैलकाटा में अपने आप को विश किया है कि आई होप कि यहाँ पर मेरी लाइफ ठीक रहे। ओवरऑल सब्जेक्ट किस बारे में, ओवरऑल पैसेज किस बारे में, ऑथर का एक्सपीरियंस एज ए टेनेंट के बारे में। तो मर्ज बोथ द थिंग्स एंड दैट्स व्हाई आंसर इज 2। द ऑथर्स एक्सपीरियंस एज अ विमेन इन कैलकाटा इज वेरी ब्रॉड इन नेचर। ठीक है, अपने पूरे पैसेज में ऑथर ने अपने विमेन होने का एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया है, उसने टेनेंट होने का एक्सपीरियंस शेयर किया है। ठीक है, टेनेंट जो कि विमेन है ऑफ कोर्स, उसका एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो दिस विल मेक इट वेरी ब्रॉड। द पैसेज इज अबाउट द टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड। All right. The author's relationship with her landlord in Calcutta. This is a very vague term to use. Relationship with her landlord. क्या? Right. So better choice is obviously option number 2. कि उसकी जर्नी कैसी रही कैलकाटा में। Okay. Next. The author presents her argument in the passage by. आर्ग्यूमेंट को या पैसेज को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। All right. So answer is option number 2. Okay. Introducing a subtle innuendo and denouncing it subsequently. क्या मतलब हुआ, पैसेज का स्ट्रक्चर क्या है उसको समझो। ऑथर ने इस पैसेज को कैसे लिखा, उसने एक सरकास्टिक बिगिनिंग की भद्रलोक बोल के, फिर उसने उसको क्या किया, उसने बताया कि ये लोग कैसे भद्रलोक नहीं है, कैसे भद्रलोक नहीं है। ठीक है, उस आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाया। फर्स्ट क्या बोल रहा है, इंट्रोड्यूसिंग एन इम्प्लिसिट प्रेमाइस एंड डिफेंडिंग इट सब्सिक्वेंटली। ऑथर ने एक प्रेमाइस इंट्रोड्यूस किया। प्रेमाइस मतलब होता है एक आर्ग्यूमेंट सॉर्ट ऑफ, एक इंट्रोड्यूस किया और उसको डिफेंड किया। उल्टा, उसने इंट्रोड्यूस करके उसको डिफेंड नहीं किया, उसको डिनाउंस किया। डिफेंड करना का मतलब ये होता है कि उससे चिपक कर चलना। तो शुरू में उसने इंट्रोड्यूस क्या किया था, भद्रलोक। ओके, उसको डिफेंड नहीं किया, उसको डिनाउंस किया। सेकेंड है इंट्रोड्यूसिंग अ सटल इन्यूनेंडो। इन्यूनेंडो का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस। इन्यूनेंडो का मतलब होता है हिंट, इनडायरेक्ट रेफरेंस। कैसे, उसने इनडायरेक्टली उनको भद्रलोक वाली जो चीज है वो इंट्रोड्यूस करा था वहां पर, और इनडायरेक्टली उसने उस चीज को ये बोलना चाहा कि वो कैसे भद्रलोक नहीं है, और फिर जाकर के उस भद्रलोक को ही उसने डिनाउंस किया। तो शी इंट्रोड्यूस्ड द इनडायरेक्ट हिंट, शी गेव अ हिंट, वो क्या बात करने वाली, और उस हिंट को फिर डिनाउंस किया। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। डिनाउंस का मतलब इज ऑपोजिट ऑफ डिफेंड, ऑपोजिट ऑफ अनाउंस इज डिनाउंस, नेगेटिव। गोइंग फॉर जगुलर एंड आर्ग्यूइंग इन फेवर ऑफ हर स्टांस। गोइंग फॉर द जगुलर का मतलब होता है जो मेन आर्ग्यूमेंट है उसको गले से दबाना और अपने स्टांस के उसी बारे में बार बार बात करना। तो बहुत ही एक्सट्रीम ऑप्शन है। इंट्रोड्यूसिंग हर सब्जेक्ट मैटर किया है, लेकिन उसके इवोल्यूशन के बारे में बात नहीं की है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हाट इज रिक्वायर्ड इज यू नीड टू अंडरस्टैंड के पैसेज का फ्लो कैसा हुआ है, और उसके बाद उसको मार्क करना। आप में से ज्यादातर लोग की प्रॉब्लम वोकैब है, आपको समझ में ही नहीं आता पैसेज में लिखा क्या है। दैट विल बी अ बिग चैलेंज। वंस अगेन आई एम सेइंग, आपके बैच में जो इस साल तैयारी कर रहे हैं, इस साल कैट देने वाले हो, उनकी प्रिपरेशन बहुत ढीली है।
They are not at all up to the mark as far as the vocab is concerned. So words like innuendo, jugular, हमें ये पता होना चाहिए अभी. ये न्यूज़पेपर में आते हैं ये words. So read more. Next passage, again not very difficult passage. I think ये जल्दी हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा, ये जल्दी से कर लीजिए.
ओके, डन। 3 लोगों का आया है, डन, कुणाल, आशुतोष और ट्विंकल। ओके, तो मैं बता देता हूं भाई पैसेज, क्योंकि बेटर होगा थोड़ा बहुत तो बता दूं, हालांकि कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ओके, although websites such as Facebook and MySpace experienced exponential growth during the middle age of first decade, although यूज किया है तो कुछ नेगेटिव इनके बारे में बोलेगा, क्योंकि पहले पॉजिटिव बोल रहा है। बोल रहे फेसबुक और माइस्पेस ने बहुत ग्रोथ देखी है लास्ट डेकेड में। कुछ यूजर्स रिमेन oblivious to the fact that information they post online can come back to haunt them। बोल रहा है इन लोगों ने ग्रोथ तो बहुत देखी है, बट इनके यूजर्स में से कुछ यूजर्स ऐसे जिनको ये नहीं पता कि वो जो चीज ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं वो वापस आकर के उन्हें हॉन्ट कर सकती है। फर्स्ट, अच्छा यहाँ पे फर्स्ट लिखा है तो कहीं ना कहीं सेकंड भी लिखा होगा। एक रीजन बताया कि क्यों हॉन्ट कर सकती है, एक रीजन ये बताया हॉन्ट क्यों कर सकती है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स जो है वो एम्प्लॉय के को मॉनिटर कर सकते हैं, उनकी ब्लॉग, फोटो डायरी ये सब देख करके उनको मॉनिटर कर सकते हैं। कंट्रोवर्शियल ओपिनियन दिया है तो उन्हें जॉब से निकाल सकते हैं, जैसे कि इसमें हुआ है, एग्जाम्पल दिया है। ठीक, दूसरा अनइंटेंडेड यूज क्या हो सकता है? आप किसी चीज को पोस्ट कर रहे हो तो दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? एक तो आपका एम्प्लॉयर आप पे नजर रख रहा है, आप क्या पोस्ट कर रहे हो, और पर्सनल लाइफ में एक तरीके से दखल दे रहा है। दूसरा ये है कि प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स, जो मतलब किसी को जॉब देने वाले थे, इंटरव्यू के पहले वो भी हो सकता है इस पे नजर रखें और डिसाइड करें कि आप उनके लिए सही है या नहीं है। उसके लिए फिर एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, राइट, तो ये दूसरा अनइंटेंडेड यूज हो गया। जस्ट अ मिनट गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर ये तीसरा अनइंटेंडेड यूज बता रहा है। कॉलेजेस में एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो आपके वो आपको मॉनिटर कर सकते हैं। फिर उसका एक एग्जाम्पल दिया है। तो किस तरीके से इसने आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट किया है, इसने एक बात बोली है, उस बात को फिर उस बात को एक्सप्लेन करते हुए उसने अलग अलग रीजंस दिए हैं। पहला रीजन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और हर किसी का एग्जाम्पल भी दिया है। ये काम अभी तक के उसने किया है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है। Although more users of websites such as Facebook are becoming aware of the potential pitfalls of online identities, many regular users still fail to take 3 basic security precautions। बोल रहा है बहुत सारे लोग ध्यान तो देते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी 3 बेसिक सिक्योरिटी प्रिकॉशन नहीं लेते। 3 बेसिक सिक्योरिटी प्रिकॉशन, फिर उसके बारे में बोला है। पहला प्रिकॉशन ये लेना चाहिए, दूसरा प्रिकॉशन ये लेना चाहिए, तीसरा प्रिकॉशन ये लेना चाहिए। उसमें भी देखो बड़ा इंस्ट्रक्शन टाइप का दिया है। नेवर डू दिस, ओनली मेक योर इंफॉर्मेशन अवेलेबल, रेगुलरली सर्च फॉर पोटेंशियली, मतलब आपको डायरेक्शन दिया एक तरीके से कि क्या करना चाहिए। ठीक है, अच्छा चलो लास्ट पैराग्राफ में क्या हुआ है। इन द लास्ट पैराग्राफ द ऑथर डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट पूछ रहा है, सारी चीजें कर रहा है, इनमें से एक चीज नहीं कर रहा है। कॉशन, सावधानी कर रहा है क्या? हाँ, आपको सावधान कर रहा है कि आपको ये 3 चीजें करना चाहिए। एडवाइस देना, यस वो भी कर रहा है। कंप्लेनिंग इज द आंसर, ही इज नॉट कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग, ही इज मेकिंग यू कॉशन एंड एडवाइजिंग एंड सजेस्टिंग, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग, कि क्या करना चाहिए। ठीक है, वेरी इजी। हाउ हैज ऑथर अरेंज्ड हिज आइडियाज इन द पैसेज? Yes, answer is option number 2. He discusses the potential threat and goes on to prescribe the preventive measures. Potential threat क्या बताया ना, कि अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो कहां आप जो ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है पोटेंशियली, और फिर बताया कि उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं लास्ट पैराग्राफ में।
Which of the following would be most likely considered as misconduct by Boston College mentioned in the passage? तो बॉस्टन कॉलेज के बारे में जहां मेंशन किया है उस एग्जाम्पल को पढ़ो, उसी के जैसे एक और एग्जाम्पल यहां पर होगा। आपको ये बताना है कि उस कॉलेज किस चीज, वह कॉलेज कौन सी चीज को मिसकंडक्ट मानेगा। यस, कम ऑन, दो आंसर ही बस आए हैं अभी तक, ईशांत और आशुतोष के। ओके, तो पहले देखो बॉस्टन कॉलेज में हुआ क्या था। और लोग आंसर दें यार, बस 3 लोग आंसर दिए। आई विल वेट, लेट मी आस्क पीपल। आदित्य, अमृतांश, आई हैव नॉट गॉट एनी आंसर फ्रॉम यू टुडे, so are you present in the class? जयप्रकाश, कोई आंसर नहीं आ रहा है। महिमा, मानसी, कोई आंसर नहीं आ रहा है। निधि यादव, नो आंसर। क्या ये इतना डिफिकल्ट है क्या कि आप लोग सो गए हैं, कि आप लोग नहीं हैं क्लास में? आदित्य, अमृतांश, आर यू देयर इन द क्लास? तो आंसर क्यों नहीं देते हो यार? लगता है मेरे ख्याल से लोगों ने पढ़ा ही नहीं है और कुछ भी मार्क कर रहे हैं, रैंडमली कुछ भी मार्क करना है। अब मैं कुछ बच्चे जो जवाब देते हैं उनका बैच अलग बना करके मैं उनको पढ़ाऊंगा, बाकी जो जवाब नहीं देते उनको अलग पढ़ाऊंगा। मतलब आई कैन नॉट मेक पीपल हु आर वेरी अटेंटिव इन क्लास सफर। सो वो डेफिनेटली होगा 1 महीने के अंदर। क्या हुआ था बॉस्टन कॉलेज में? A college in Boston's Back Bay expelled its student government association president for joining a Facebook group highly critical of campus police sergeant। क्या हुआ था? एक स्टूडेंट प्रेसिडेंट जो था उसे एक्सपेल कर दिया क्योंकि उसने फेसबुक में ऐसा ग्रुप ज्वाइन किया था जो कैंपस पुलिस सर्जेंट के खिलाफ बोल रहा था। मतलब कैंपस का जो लॉ मेकर है, एक बॉडी, एक एम्प्लॉय है कॉलेज का, उसके खिलाफ पर जो बोल रहा था ग्रुप, उसको ज्वाइन किया था। क्या आंसर मार्क कर रहे हैं लोग? ज्यादातर पता है, वन ऑफ इट्स स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन एलजीबीटी प्राइड रैली। किस दुनिया में है, कौन सा बायस अपना लेकर के आए हैं, पता नहीं क्या क्या दिया है। एक स्टूडेंट को एक्सपेल किया क्योंकि वो कॉलेज के किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट काम कर रहा था। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द ओनली ऑप्शन which has student and college का कोई employee। ऑप्शन नंबर 3 is student and student union president।
समझ में आया? जो लोग 1 मार्क कर रहे थे वो क्या सोच के 1 मार्क कर रहे थे? लेट मी आस्क देम। हु वाज 1? मानसी, व्हाई 1? सचेता, व्हाई 1? प्रखर वर्मा क्यों 1 मार्क किया था? कुछ तो रीजन होगा ना, तो यू कैन स्पीक, तभी क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे। आप बोल दो मैंने पैसेज ठीक से नहीं पढ़ा था, तो भी मेरे को चलेगा। Are you guys answering or shall I remove you from the class? I want answer from the 3 people I asked, whatever your answer is. आप बोल दो पैसेज नहीं पढ़ा था, तुक्का लगा दिया तो भी चलेगा, बट आई वांट आंसर। क्यों 1 मार्क किया था हमने? क्या क्या समझे थे हम? मुझे मुझे जानना है कि हमें हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या, क्या प्रॉब्लम है? मानसी, सचेता एंड प्रखर। या आप जवाब दो या आप खुद छोड़ दो क्लास। ठीक है, ठीक है, मुझे पता था ये क्यों ऐसे आप लोग। ये प्रखर वर्मा तुम्हारा जवाब नहीं आया, सचेता और मानसी का आ गया। तुम क्लास खुद से छोड़ रहे हो, मैं हटाऊं? सर हेलो। हाँ, सर एक्चुअली वो एसोसिएट प्रेसिडेंट थी, तो मेरे को लगा सर उसका ये राइट है स्ट्राइक करना है स्टूडेंट्स के लिए, तो आई थॉट कि 1 हो सकता है। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात। अपन को क्या करना चाहिए, अगर ऐसा कंफ्यूजन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, जाकर के एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको बस इसमें ये देखना था वहां पर किस इंसिडेंट के वजह से प्रॉब्लम हुई थी। तो जो इंसिडेंट की पार्टीज थे उसे देखना जरूरी है, क्या हुआ था एक्चुअली। ठीक है, अब आप खुद सोचो, तुम्हारी कॉलेज में अगर तुमने एक कॉलेज के एम्प्लॉय के अगेंस्ट कुछ बोला, तुम्हें एक्सपेल कर दिया। तुमने तुमने डेमोन्स्ट्रेशन में पार्ट लिया था, क्योंकि वो डेमोन्स्ट्रेशन कॉलेज के एम्प्लॉय के अगेंस्ट था, इस वजह से तुम्हें एक्सपेल कर दिया गया। तो तुम क्या बोलोगे, किस तरीके के इंसिडेंट की वजह से लोगों को एक्सपेल किया जाएगा? कि क्या तुम कभी भी कोई स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करोगे उस वजह से, या कॉलेज एम्प्लॉय के अगेंस्ट में कुछ काम करोगे उस वजह से? तो उसको आप उस तरीके से समझो। और जो लोग ठीक से नहीं पढ़े थे, बेटा मैं आपको टाइम इसलिए दे रहा हूं ताकि आप पढ़ सको। दिस यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर प्रिपरेशन। अगर कैट में कम मार्क्स आए तो फिर पहला ब्लेम तो हमारा ही होगा ना। नेक्स्ट पैसेज, छोटा सा पैसेज है, ठीक है, इसमें हो सकता है एक एक चीज समझ में नहीं आएगी, बट आप आराम से बस ये समझो कि मेन पॉइंट क्या है बोलना जो चाह रहा है, उसके बाद आंसर करेंगे, ठीक है।
All right, done. ओके, तो देखते हैं ये किस बारे में है, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट वे में अपन देख लेते हैं। Prior to the fall of USSR, Mikhail Gorbachev, seeing a country falling behind its Western rival and the people increasingly clamoring for change, addressed the growing internal unrest in the summer of 1987 by introducing a series of reforms known as Perestroika. तो उन रिफॉर्म्स का नाम दिया है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। In Perestroika, New Thinking for Our Country and the World, Mikhail Gorbachev discussed his analysis of the problems facing the USSR and his plan to solve them. तो यूएसएसआर जब फॉल हुआ, उसके पहले मिखाइल गोर्बाचेव ने एक नई पॉलिसी इंप्लीमेंट की, पेरेस्ट्रोइका। इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये काफी पीछे होता जा रहा था यूएसएसआर, तो इसको कंट्रोल करने के लिए उसने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, पेरेस्ट्रोइका, 1987 में, और बताया कि कैसे ये पॉलिसी से हमें हेल्प हो सकती है। उसके बाद वाले पैराग्राफ में ये बताया कि क्या था इस पॉलिसी में, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी यूएसएसआर में उस समय, और मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या कोशिश की, किस तरीके से उसे हैंडल करने की कोशिश की। तो कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्स्ट आइडिया इटसेल्फ है, ठीक। सेकंड और थर्ड पैराग्राफ उसी बारे में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और किस तरीके से उसने हैंडल करने की कोशिश की। गोर्बाचेव ने ये चीज बोली और क्या क्या उसने, हर जगह आप वही चीज देखोगे, उसने क्या करने की कोशिश की। लास्ट पैराग्राफ की शुरुआत ऑल्दो इससे हो रही है। Although Gorbachev also opined that the growing public disbelief in the content of immense government propaganda campaigns, the extent to which economic underdevelopment and social deviance gripped the Soviet culture made the collapse of USSR virtually inevitable in the mind of many observers. कुल मिलाकर के ये बोल रहा है कि हालांकि लोगों को ये लगता है कि गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा कर रही है, कैंपेन कर रही है, लेकिन काफी सारे लोगों के दिमाग में ये तय था कि यूएसएसआर अभी फॉल होने वाला है। फिर लास्ट पैराग्राफ में ये बोल रहा है कि जब ग्लासनोस्ट, एक और पॉलिसी थी, और गोर्बाचेव का प्लान कंबाइंड हुआ, कौन सा प्लान, पेरेस्ट्रोइका, ये प्लान कंबाइन होने से एक्चुअली कोलैप्स और जल्दी हो गया। मतलब गोर्बाचेव ने जो प्लान किया था कि इससे मैं कोलैप्स को, फॉल को रोकूंगा, एक्चुअली में उससे और ज्यादा जो प्रोसेस ऑफ कोलैप्स है वो और ज्यादा तेज हो गया, और ज्यादा जल्दी हो गया। Contrary to its purpose, Perestroika ensured that the fall of USSR would occur sooner rather than later. तो कुल मिलाकर के आर्ग्यूमेंट ये है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने कोलैप्स रोकने के लिए कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की थी, उसकी सोच बताया है कि क्या सोच के उसने वो पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी, लेकिन लास्ट पैराग्राफ में बताया है कि इनफैक्ट कोलैप्स बचा तो नहीं, और ज्यादा उससे जल्दी हो गया, हेस्टन हो गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, which of the following best describes the main aim of the last paragraph? लास्ट पैराग्राफ का मेन एम क्या है? Okay, the main aim of the last paragraph is option number 2, explain an unintended consequence of a desirable course of action. तो मिखाइल गोर्बाचेव ने जो किया वो किसी और सोच के साथ किया था, बट उसका अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया, और जल्दी प्रोसेस हेस्टन हो गया। नॉट 3, क्रिटिसाइज गोर्बाचेव एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू यूएसएसआर। उसको क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं लिखा है ये पैसेज, क्रिटिसाइज तो इनफैक्ट उसने कहीं भी नहीं किया इसे, उसने बस बोला कि ये सोचा कुछ था, हुआ कुछ और, ठीक है। तो सही दिया है, काफी लोगों ने सही आंसर दिया। द ऑथर ऑफ द पैसेज इज मोस्ट लाइकली, अच्छा ऑथर क्या होगा, अब एक एक आराम से आंसर देने से पहले आराम से सोचो किस तरीके की बात इसने बोली, इसने किस तरीके की बात बोली। क्या ऐसी बात एक सोशल एक्टिविस्ट बोलता है? एक सोशल एक्टिविस्ट, किसी भी सोशल एक्टिविस्ट को आप जानते हो, फॉर एग्जांपल उठा लो, क्या सोशल एक्टिविस्ट इस तरीके की बात करता है कि मेरी कंट्री में उस समय क्या हुआ था? नहीं।
न्यूज़पेपर एडिटर इतनी डीप बात नहीं करेगा, वो अपने न्यूज से मतलब रखेगा। आंसर इज हिस्ट्री टीचर। इट्स अ हिस्ट्री का एक टीचर है जो स्टूडेंट्स को बता रहा है। करंट एम्बेसडर ऑफ रशिया टू यूएसए, क्यों भाई ये करंट अभी के एम्बेसडर क्यों लिखेगा, और यूएसए ही गया है ये कैसे पता तुमको? कितनी अनवांटेड चीजें है ना इसमें, करंट एम्बेसडर भी और यूएसए भी। ये कहां से निकाला हमने कि यूएसए में अभी जो रशिया का एम्बेसडर है उसने लिखा है। और एक चीज बताओ, आप सपोज करो पाकिस्तान का कोई एम्बेसडर इंडिया आया है, वो क्यों ये बताएगा कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स क्या है? उल्टा है ना, अपने देश का प्रॉब्लम बताने थोड़ी ना आएगा वहां पर। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, राइट। एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। You have to type in the chat box if there is any doubt, else we will end the session. ठीक है देन, चलो बाय, गुड डे।